and these two are the most complicated functions. Many students find problem in these two functions. So first we will discuss about round function, and then after that we will discuss about truncate function. So let us discuss it one by one. So I'll take you to the notes. So here I've got round functions in my SQL. Okay, तो ये definition है. तो एक बार इसके let us go to the syntax. Syntax, here we have got the syntax round number or column name comma n. ठीक है, column name when we use it with a table. So round जब हम use करते हैं, let me write it here. Round function can be used with a number or a column name of a table. The column name should be integer or float number. ठीक है, round हम लोग यूज कर सकते हैं, we can use with a number or a column name of a table. So we will talk about both the things. First we will talk about the number, then we will talk about the column name. So यहाँ पे अगर syntax पे we go to the syntax, I've just highlighted this. Okay, round number or column name comma n. So we have got two arguments. The first argument is any number. Okay, then we have got the second argument as n. Okay, look here, I'll just highlight these things. Okay, got two arguments. First is number. So number, it can be any number with or without decimal point और कॉलम नेम. ओके, तो नंबर कुछ भी हो सकता है. ये इसमें डेसिमल पॉइंट, इस वाले नंबर में वी कैन हैव डेसिमल पॉइंट और वी कैन नॉट हैव डेसिमल पॉइंट. ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी राउंडेड ऑफ. अगर मैं ये इंक्लूड नहीं करूंगा, सो बाय डिफॉल्ट इट इज 0. इफ यू डोंट गिव n, then it is considered as 0. So it can be positive. ये जो n जो है, n can be positive. Let me write it here. N can be positive, such as 0, 1, 2, 3, or negative as well. Okay, so n is optional. So we just spoke about this point. N is optional. अगर हम नहीं देंगे तो by default it is considered as 0. So we will look at each of the situation. आप ये नोट वाला पॉइंट हम लोग एक बार लेट अस डिस्कस दिस नोट वाले पॉइंट पे एक बार बात करें. अगर हमारा पॉजिटिव नंबर अगर रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, तो जो पहला आर्गुमेंट है, यानी नंबर हमारा डेसिमल पॉइंट में होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी राउंडेड ऑफ टू इट्स नियरेस्ट डिजिट. ठीक है, अगर इफ द नंबर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, राउंडिंग विल टेक प्लेस, अदरवाइज नो राउंडिंग विल टेक प्लेस. फॉर नेगेटिव नंबर्स कैन बी. ठीक है, हम बात करेंगे. लेट अस टॉक अबाउट दिस सिनेरियो, केस 1. ठीक है, if we have only one argument and we have number without decimal point, no rounding off is done. जैसे एग्जांपल के लिए, मतलब हमारे पास एक आर्गुमेंट है और हमारा जो नंबर है वो बिना डेसिमल पॉइंट के. जैसे देख, ये वाला हमारे पास यहाँ वी हैव ओनली वन आर्गुमेंट. ओके, कॉमा से देखो मैंने सेपरेट नहीं किया है, आई हैव नॉट गिवन कॉमा, सो वी हैव गॉट ओनली वन आर्गुमेंट. सो इन दैट केस वी लुक एट द आउटपुट इज
द नंबर इटसेल्फ, यानी 5 6 7। एक बार मैं टाइप करता हूं इसे, लेट मी टाइप, इफ आई टाइप लाइक दिस, सेलेक्ट राउंड, मैं बस नंबर दे दूं 456, तो वी हैव गॉट द सेम रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने केवल एक आर्गुमेंट दिया है, आई हैव जस्ट पास नंबर, आई पास नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द अदर केस। ओके, द सेकंड एग्जांपल आई हैव गिवन केस 2। केस 2 में हमारा क्या है, इफ वी हैव ओनली वन आर्गुमेंट एंड वी हैव नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। नाउ इस वाले पे फोकस करेंगे। सपोज करो हमारे पास 0.56 मैंने ले लिया। Now this time let me highlight this. I have taken a number, but this time I have a number with decimal point. So what will happen is that ये इस 5 वाले को देख के, जो which I have highlighted, okay, 5 इसको देख के राउंड ऑफ करेगा। तो 5 तो 5 is greater than is equal to 5. Let us check this formula. It is equal to 5. तो राउंडिंग ऑफ will take place. अब राउंडिंग ऑफ टेक प्लेस होगा तो what will happen is that this 6, let me highlight this, okay, ये जो 6 है ये एक बढ़ जाए, ये एक अप हो जाएगा, यानी दिस विल बिकम 457। okay, let me hit enter. So this has become 457. Now let us consider another example. मैं यहाँ पे क्या करूं, मैं 4 दे दूं। ठीक है, now what will happen is that ये जो राउंड ऑफ करेगा ये इसे देख के करेगा 4 को। ठीक है, इस वाले को 4 को इसने देखा 4 is greater than 5, no, then this 6 will not be rounded off, ये 456, it will remain 456। okay, so got my point। तो when we have just one argument और हमने नंबर स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो डेसिमल के बाद वाले नंबर को देख के राउंड ऑफ करेगा। अगर वो नंबर 4 से बड़ा हुआ देन राउंड ऑफ विल टेक प्लेस। नाउ सपोज मैं 76,0 कर दूं। ठीक है, इस केस में हमारा क्या होगा, 0 का मतलब है कि आप डेसिमल के बाद 0 डिजिट्स को डिस्प्ले करोगे, मतलब डेसिमल के बाद कोई डिजिट हमारा डिस्प्ले नहीं होगा। पर 0 राउंड ऑफ किसको देख के करेगा, इस 7 वाले को देख के राउंड ऑफ करेगा। तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 6 क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा। सो द आउटपुट वी विल गेट इज 4 5 7। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर इफ आई डोंट मेंशन दिस 0, तो मैंने बोला था कि मैंने इसमें एक ही आर्गुमेंट दिया हुआ है, कॉमा से देखो इसमें एक ही आर्गुमेंट है। ऊपर वाले में इफ यू गो, ऊपर वाले में लेट मी हाईलाइट, इसमें वी हैव गॉट 2 आर्गुमेंट्स, कॉमा से मैंने 0 दिया है। तो अगर आप एक ही आर्गुमेंट देते हो बाय डिफॉल्ट वो कॉमा 0 रहता है। तो इस केस में भी वी विल गेट द सेम रिजल्ट विच इज 457। ओके, सो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन हियर। ओके, अब मैं नीचे चलता हूं, लेट मी गो डाउन। ओके, केस 3। So case 3, if we have 2 arguments and the second argument is a positive number, एक चीज इंटरेस्टिंग, सेकेंड आर्गुमेंट तो आप देखो जैसे मैंने अगर 0 1 2 3, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या फॉलो करना है कि सपोज करो मैंने ऐसा टाइप किया, मैं 456 दे दूं, नो राउंडिंग ऑफ द नंबर विल बी 456। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉमा 0 मैंने दे दिया, नो राउंडिंग ऑफ विल टेक प्लेस, बिकॉज मैंने बोला अगर आप राउंडिंग ऑफ करना चाहते हो पॉजिटिव नंबर के साथ, जैसे 0 1 2 3, ठीक है, अगर मैं एक ही आर्गुमेंट दूं तो वो 0 समझता है। तो आपको राउंडिंग ऑफ के लिए द नंबर हैज टू बी इन डेसिमल पॉइंट्स, देन ओनली द राउंडिंग ऑफ विल टेक प्लेस। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया 456.7 दे दिया, अब यहाँ पे मैंने एक ही आर्गुमेंट दे रखा है, कॉमा से मैंने सेपरेट नहीं किया, तो ये क्या राउंड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि
ये जीरो समझता है, यानी जीरो किसे देख के राउंड ऑफ करेगा, इस 7 वाले को, तो द रिजल्ट विल बी 457। ओके, तो अगर मैं इसमें 1 दूं, मैं कॉमा 1 देता हूं, ठीक है। 1 का मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्ले करेगा डेसिमल के बाद एक डिजिट, डिस्प्ले करेगा डेसिमल के बाद एक डिजिट, बट इट विल राउंड ऑफ बाय लुकिंग एट द सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट्स हैं, तो 1 का मतलब हो गया ये दूसरे वाले डिजिट को देख के राउंड ऑफ करेगा, तो हमारा तो डेसिमल के बाद दूसरा डिजिट है नहीं, so the answer will remain the same, so the answer will be 456.7। okay, मैं let me hit enter। okay, now let me give, यहाँ पे मैं देता हूँ 76। तो अब ये मैंने कॉमा 1 दे रखा है, 1 का मतलब है ये डिस्प्ले करेगा डेसिमल के बाद एक डिजिट को ही, पर ये राउंड ऑफ करेगा दूसरे वाले डिजिट को देख के, तो दूसरा वाला डिजिट व्हाट डू वी हैव, सेकंड डिजिट इज 6, सो 6 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो ये राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा आपको एक ही, तो ये 7 क्या हमारा बन जाएगा, दिस 7 विल बिकम 8, 7 मैंने हाईलाइट कर रखा है, 8 बन जाएगा, सो द आउटपुट विल बी 456.8। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे जरा नंबर एक बार चेंज कर लूं, 543, ठीक है, मैंने 2 दे दिया, इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को दिखाएगा, लेकिन ये देखे ये राउंड ऑफ करेगा तीसरे वाले नंबर को देख के डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं, तीसरा तो है नहीं, तो ये क्या होगा 543.76, इट विल रिमेन द सेम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी इंक्रीज द नंबर, मैं 4 कर दूं, अब मैंने यार 2 दे रखा है, तो ये राउंड ऑफ करेगा तीसरे वाले डिजिट को देख के, लेकिन हमारा दिखाएगा कितना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही दिखाएगा, लेकिन थर्ड पोजीशन पे व्हाट इज द नंबर वी हैव, 4, so 4 is not greater than 5, so in this case it will remain the same, that is the answer will be 543.76। ओके, अब मैं इसे चेंज करके इसको 5 कर दूं, अब मैंने कॉमा 2 दे रखा है, 2 यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट डिस्प्ले करेगा, पर राउंड ऑफ करेगा ये तीसरे वाले इसको देख के, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यस इट इज इक्वल टू 5, तो ये जो 6 हमारा ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 543.77। ओके, अब मैं सपोज करो मैं यहाँ पे 3 देता हूं, तो ये तो डेसिमल के बाद चौथे डिजिट को देख के राउंड ऑफ करेगा, पर डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, वी हैव गॉट ओनली 3 डिजिट्स, so the answer will remain the same, that is 543.765। अब सपोज करो मैं यहाँ पे 4 ऐड कर दूं, यानी ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट को डिस्प्ले करेगा, लेकिन डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, और ये राउंड ऑफ इस 4 का मतलब ये राउंड ऑफ किसको देख के करेगा, 5वें डिजिट को, लेकिन हमारे पास तो 3 ही डिजिट्स हैं और इसे दिखाना कितना है 4 डिजिट्स, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली 0 ऐड कर देगा, मतलब द आउटपुट विल बी 543.7650। ओके, मैं एंटर करूं, सो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट मी गो डाउन, अब मैं निगेटिव नंबर के साथ चलता हूं, ठीक है, इफ वी हैव निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर के केस में सपोज करो मैं यहाँ पे ये वाला आर्गुमेंट, सॉरी ये जो आर्गुमेंट है मैं इसको निगेटिव लेता हूं, -1 मैंने लिया, तो देखो -1 मैंने बोला है कि -1 कितने पे करेगा, 10th राउंड, इट विल राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 10th, ठीक है, जिसे आप नोट्स में मैं जरा एक बार हाईलाइट करूं, ओके, माइनस फॉर -1 द राउंडिंग ऑफ इज डन टू द नियरेस्ट 10, ठीक है, -2 क्या करेगा, राउंडिंग ऑफ इज डन टू द नियरेस्ट 100, for -3 the rounding off is done to the nearest 1000 and so on। तो let me explain the logic behind it। तो जैसे मैंने यहाँ -1 दे रखा है, तो ये डेसिमल के पहले करता है, माइनस में क्या होता है, if n is
if n is negative, ठीक है, then the rounding off is done to the left of the decimal। मतलब लेफ्ट ऑफ द डेसिमल कहने का मतलब है डेसिमल के लेफ्ट में हमारे पास क्या है, डेसिमल के लेफ्ट में हमारे पास है ये 3 नंबर है 543, यानी इस तीनों पे जब निगेटिव ये -1 है तो ठीक है, ये डेसिमल के बाद वाले नंबर को कंसीडर नहीं करेगा। डेसिमल वाले बाद के नंबर कब कंसीडर होते हैं, जब हमारा 0 1 2 3 रहे तो अगर मैं 0 नहीं भी दूं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 लेता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस। तो -1 मैंने दे रखा है, तो अब मुझे पॉइंट वाले इस तीनों से कोई मतलब नहीं है। मैं अब लेफ्ट पॉइंट के लेफ्ट में जाऊं तो ये 3 है, तो ये राउंड ऑफ करेगा -1, यानी इस 3 को देख के राउंड ऑफ करेगा। नियरेस्ट 10, तो 3 तो 5 से बड़ा नहीं है, 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा ये, तो ये नियरेस्ट 543 के नियरेस्ट 543, लेट मी राइट इट, 543 के नियरेस्ट 10th नंबर, तो 543, 3 is less than 5, 3 is less than 5, so the output will be 540। ये 543 का नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा 540, ठीक है। एक बार मैं लेट मी हिट एंटर, ठीक है, 540 इज द आंसर। नाउ आई विल चेंज द नंबर, मैं यहाँ पे 545 कर दे रहा हूं, तो मैंने -1 दे रखा है, तो ये 545, तो यहाँ पे इस वाले को देख के करेगा 5, तो 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये 545 के नियरेस्ट 10th यानी अपवर्ड पोजीशन में, यानी तो 545 के बाद कौन सा हमारा 10th डिजिट का नंबर आता है अप पोजीशन में, तो वो क्या है 550, सो द आंसर विल बी 550। सिमिलरली अगर मैं -2 करूं तो -2 क्या करेगा, डेसिमल के लेफ्ट हैंड, मैंने बताया था डेसिमल का लेफ्ट हैंड, तो -2 पे हमारा क्या है 4 है, तो 545 के नियरेस्ट 100, तो 4 हमारा क्या है छोटा है 5 से, तो 545 के नियरेस्ट 100 यानी डाउन पोजीशन पे हमारा क्या होगा 500 होगा, सो द आंसर विल बी 500। ओके, अब सपोज करो मैं यहाँ पे 55 करता हूं, तो यहाँ पे -2 है, तो -2 यानी इस वाले को देख के करेगा, तो 5, ये 5 क्या है बड़ा, इज इक्वल टू 5, हाँ इक्वल टू 5 है, तो 555 के नियरेस्ट 100 यानी अप पोजीशन में कितना हो जाएगा 600, सो द आउटपुट विल बी 600। ओके, नाउ लेट अस कम टू दिस। अब मैं क्या करता हूं, मैं 455 और मैं करता हूं -3, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे -3 यानी -3 -1 पे हमारा 5 हो गया, -2 पे ये हो गया, अब -3 पे हमारा क्या हो गया 4 हो गया, तो क्या ये 4 बड़ा है 5 से, नहीं, तो -3 हमारा 1000 पे करता है, तो 455 का डाउन 1000 कुछ होता है नहीं ना, तो यहाँ पे दी आउटपुट विल बी 0। ये आउटपुट 0 क्यों होगा, क्योंकि 455 के डाउन पोजीशन मतलब हमारा कुछ नहीं, तो 0 विल बी दी आउटपुट। नाउ लेट अस, I'll just change the number, I'll make it 5। अब ये -3 मैंने दे रखा है, तो -3 क्या करेगा इस वाले को देख के राउंड ऑफ करेगा, तो ये 5 बड़ा लेकिन इक्वल टू 5 है, तो 555 के नियरेस्ट 1000 यानी अप पोजीशन में हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, सो द आंसर हियर विल बी 1000। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -4 कर देता हूं, तो -4 किसको देख के करेगा, हमारे पास डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव ओनली 3 डिजिट्स, तो इसमें द आंसर द आउटपुट विल बी 0, बिकॉज 4 तो हमारे पास है नहीं, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे -5 कर दूं तो भी क्या होगा 0 हो जाएगा।
ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज राउंड। ठीक है, अब मैं बात करूं ट्रंकेट के बारे में। तो ट्रंकेट क्या होता है? ट्रंकेट कुछ नहीं करता, ट्रंकेट मीन्स एक तरह से छांटता है। ये माइनस वाले के साथ दूसरे वे में बिहेव करता है और पॉजिटिव नंबर में दूसरे वे में बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप मैं लिखूं, मैंने जैसे लिखा सेलेक्ट ट्रंकेट, अब मैंने दे दिया 543। जैसे राउंड के साथ मैं ये सही था, पर ट्रंकेट के साथ अगर आप यूज करोगे इट विल गिव एन एरर। ओके, लेट मी हिट एंटर। एरर दे दिया इसने, लेकिन मैं राउंड के साथ अगर ये यूज करूं, लेट मी पुट राउंड, सो द आउटपुट विल बी सेम 543 हो जाएगा, क्योंकि मैंने डेसिमल नहीं दिया है, तो इट विल हैव द सेम आउटपुट। ये ठीक है। तो ट्रंकेट के साथ अगर आप यूज कर रहे हो तो कॉमा जीरो मैंने दे दिया। तो कॉमा जीरो का मतलब है कि इसमें 543 विल बी दी आउटपुट। ओके, अब सपोज करो मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूं। मैंने बोला कि आप जब पॉजिटिव नंबर दे रहे हो तो आपको पॉइंट देना जरूरी है। 987, अब मैं यहाँ पे 1 दे दूं, तो इसे राउंड ऑफ से कोई मतलब नहीं। इस 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब है कि डेसिमल के बाद केवल ये एक डिजिट को डिस्प्ले करेगा, इसमें राउंड ऑफ नहीं होता है, यानी द आउटपुट विल बी 543.9। ओके, लेकिन मैं अगर इसे राउंड करता, आप ध्यान देना इस पे, अगर मैं राउंड करूं सॉरी राउंड करूं, यहाँ पे मैंने 1 दे रखा है, यानी 1 का मतलब क्या है? ये डेसिमल के बाद एक डिजिट को डिस्प्ले करेगा, लेकिन राउंड ऑफ करेगा दूसरे वाले डिजिट, यानी इस 8 को देख के। तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 0, यानी 540। व्हाट विल इट बी? लेट मी हिट एंटर, लेट अस सी द रिजल्ट। 544 राउंड ऑफ हो गया, ये 544। ठीक है, सो राउंड ऑफ और ट्रंकेट में आई होप यू हैव गॉट दी डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? अब मैं जरा ट्रंकेट अब यहाँ पे 2 दे दूं, यानी इसका मतलब है डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट को डिस्प्ले करेगा, यानी 543.98 वुड बी द आंसर। ओके, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूं तो 543.987 वुड बी द आंसर। अगर मैं राउंड करता तो भी ठीक है। अब तो ट्रंकेट आप समझ गए, ये ट्रंकेट क्या करता है? बस एक मैं 4 देता हूं, ठीक है, 4 में क्या करेगा? 9870, तो राउंड भी इस केस में यही आंसर देता। ठीक है, लेट मी हिट एंटर। ठीक है, अब मैं राउंड ट्रंकेट को निगेटिव नंबर के साथ यूज करता हूं। जैसे मैंने दिया -1, अब देखना मैंने -1 यानी डेसिमल के लेफ्ट, मतलब हमारे पास डेसिमल के पहले हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो ये इसको देख के राउंड ऑफ करेगा। तो -1 मतलब क्या हुआ? इस वाले को राउंड ऑफ नहीं करेगा, सॉरी, इट विल यानी 543, तो ये इसका क्या होगा? 540 वुड बी द आंसर। ओके, अगर मैं राउंड यूज करता तो भी यही आंसर होता। अगर मैं यूज करता, क्यों ये आंसर होता? बिकॉज -1 किसे देख के राउंड, ये यानी इसका नियरेस्ट 10, यानी डाउन पोजीशन पे, तो 540 इसका भी आंसर होता। ठीक है, लेकिन आप देखो मैं एक बार ट्रंकेट यूज कर रहा हूं, लेट मी चेंज द वैल्यू। मैं यहाँ पे 6 दे रहा हूं, तो 6 तो बड़ा है ना 5 से, लेकिन ट्रंकेट क्या करेगा? इसे 540 में ही रहने देगा। ठीक है, ट्रंकेट 540 में ही रहने देगा, सेम आउटपुट। ओके, तो आप देखोगे, लेट मी हाईलाइट दिस, ये वाला जो आउटपुट है ये, ठीक है, ये और ओके, और ऊपर वाले आउटपुट में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये वाले आउटपुट में वी हैव गॉट द सेम आंसर। तो ये क्या करता है? हमेशा ये डाउन पोजीशन में राउंड ऑफ करता है। अगर आप ट्रंकेट के साथ माइनस देते हो तो डाउन, ये अप पोजीशन पे कभी नहीं करेगा। ये चीज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो अभी मैं और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करता हूँ। लेट मी गो डाउन। ओके, गिव मी अ मोमेंट। तो ट्रंकेट हो गया। मैं ट्रंकेट के बारे में और बात, जैसे मैंने दे दिया -2 देता हूँ। ठीक है, अब -2 मैं यहाँ पे जरा नंबर चेंज कर दूं, मैंने कर दिया 556, तो -2 यानी इस वाले को देख के राउंड करेगा, तो 556, तो ये डाउन ही में, यानी इसका आंसर 500 होगा। ठीक है, लेकिन अगर राउंड यूज किया होता तो ये 600 हो जाता। ठीक है, 600 क्यों होता?
क्योंकि ये 5 क्या है, इक्वल टू 5 है, तो ये 556 के नियरेस्ट 100 यानी अब पोजीशन में हमारा क्या होता है 600। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। सो राउंड एंड ट्रंकेट, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। अब मैं एक जरा राउंड बात करूं इसके इसके साथ, टेबल के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं डेटाबेस यूज कर रहा हूं, यूज टेस्ट मैंने किया। ठीक है, शो टेबल्स मैं कर रहा हूं, मैं देखूं कौन कौन से टेबल बने हुए हैं। वी डोंट हैव एनी टेबल। ओके, शो डेटाबेसेस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। वी हैव अ यूज कस्टमर, मैं कस्टमर को यूज कर रहा हूं, कस्टमर डेटाबेस को। अब मैं देखूं शो टेबल्स। ठीक है, टेबल्स मैंने देखा, स्टूडेंट है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लेट मी चेक दिस स्टूडेंट। अब मैं इस वाले कॉलम पे बात करता हूं, मैं जरा हाईलाइट कर, ये एवीजी मार्क पे मैं एक बार राउंड और ट्रंकेट दोनों यूज करता हूं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो दिस टेबल है, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। ओके, तो सपोज करो मैंने टाइप किया सेलेक्ट, पहले राउंड के बारे में देखते हैं, सेलेक्ट राउंड, केवल मैंने एवीजी मार्क दे दिया। देखो मैंने केवल एक आर्गुमेंट दिया यहाँ पे, कॉमा देके जीरो नहीं दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जीरो जीरो लेगा। तो यानी डिफॉल्ट जीरो का मतलब है कि ये डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं दिखाएगा, पर डेसिमल जैसे इस केस में 5 को देख के राउंड ऑफ करेगा, तो ये 8 क्या हो जाएगा हमारा, ये दिस 8 विल बिकम 9। जैसे मैं एक बार जरा यहाँ वैल्यू लिख दूं, गिव मी अ मोमेंट, व्हाट आर द वैल्यूज, 78.5 है हमारे पास। तो मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो इस 5 को देख के राउंड ऑफ करेगा, तो ये 8 क्या हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, 79। फिर दूसरा डेटा क्या हमारे पास है, 89.2। ठीक है, तो यानी इस 2 को देख के राउंड ऑफ करेगा, ये 5 से बड़ा नहीं है, तो 89 विल रिमेन 89। ठीक है, फिर तीसरा हमारा है 68.6, तो यानी ये राउंड ऑफ करेगा इस वाले को देख के, तो ये हमारा 8 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी 69 वुड बी द आंसर। ओके, अब मैं देखूं 87.9। ठीक है, तो यानी इस वाले को देख के राउंड ऑफ करेगा, तो यानी ये बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 7 एक बढ़ जाए, सॉरी ये 7 क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यानी 88 वुड बी द। ठीक है, अब हमारा लास्ट 82.1, 82.1, तो ये किसको किसे देख के राउंड ऑफ करेगा, इस 1 को, तो ये तो 5 से छोटा है, तो 82 विल 2 विल, सो 82 विल स्टे 82, सो दिस विल बी द आउटपुट। एक बार मैं एंटर प्रेस करूं। ओके, just let me hit enter, oh sorry just give me a moment, डॉट डॉट आ गया। ठीक है, अब let me hit enter, unknown select round, okay sorry I have not given the table name, from student। ठीक है, अब देखो आप देखो 79 89 69 we have got the output। ओके, अब मैं एक बार फिर से एक बार टेबल डिस्प्ले करूं जरा। ठीक है, अब मैं फिर से क्या करता हूं, जैसे मैंने राउंड किया था यूज, अब मैं कॉमा देके 0 देता हूं, फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसमें भी वी विल गेट द सेम आउटपुट, क्योंकि अगर आप 0 देते हो बाय डिफॉल्ट वो 0 लेता है। ठीक है, अगर मैं 0 दूंगा तो भी विल हैव द सेम आउटपुट, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। अगर 0, अगर हमने एक ही आर्गुमेंट दिया हुआ तो वो 0 लेता है, अगर 0 दोगे तो आप सेम आउटपुट होगा। सी वी हैव गॉट द सेम आउटपुट। ठीक है, नाउ अगर मैं 1 दिया रहता, मैंने एक बार मैं पूरा डेटा देखूं, मैं 1 दूं, राउंड कॉमा 1 दे दूं, तो इसका मतलब क्या है कि आप, लेट मी राइट, यानी हमारे पास है 78.5। 1 का मतलब है ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट को देख के राउंड ऑफ करेगा, लेकिन हमारे पास एक ही डिजिट है, तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 78.5 ही रहेगा। फिर हमारे पास दूसरा डेटा 89.2, यहाँ भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसमें भी द रिजल्ट वुड बी सेम, यानी 89.2, क्योंकि ये डिस्प्ले करेगा एक ही। तो सारे केसेस में हमारे पास वैल्यूज वही रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज। सो लेट मी हिट एंटर, देखो आपने कोई चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इसे ट्रंकेट के साथ यूज करता, ट्रंकेट, तो ट्रंकेट में अगर मैंने जैसे 1 दे रखा है,
तो ये क्या डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट दिखाना है, इसको तो राउंड ऑफ से मतलब नहीं है, तो इट विल हैव द सेम, जैसे हमारा ये आउटपुट आया तो वी विल हैव द सेम आउटपुट हियर एज वेल, जैसे राउंड में हमारा आउटपुट आया, इस केस में भी हमारे पास आउटपुट सेम वही आएगा। तो लेट मी हिट एंटर। ओके, मैंने एंटर प्रेस किया, just give me a moment। so we got the same output। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब एक बार मैं निगेटिव पे बात करता हूँ, गिव मी अ मोमेंट। अब मैं एक बार जरा टेबल को देखता हूँ, ठीक है, ये देखा मैंने, अब मैं निगेटिव करूँ, सपोज करो मैंने किया ये -1 दे दिया, तो -1 में क्या होगा, ये डेसिमल के पहले -1, यानी एक बार मैं इसे कर दूं 78.5, यानी -1 दे रखा है, तो यानी पॉइंट के पहले वाले डिजिट को देखेगा, यानी इस 8 को देखेगा। 8 तो बड़ा है हमारा 5 से, तो यानी ये राउंड ऑफ करेगा नियरेस्ट 10 पे। 78 के नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, दूसरा हमारा क्या है 89.2 है। ठीक है, अब ये मैंने -1, तो यानी इस वाले को देख करेगा 9 वाले को, 9 भी ये बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो गया 90 हो गया हमारा। ठीक है, अब 68.6, यानी -1 का मतलब है इसे देख के राउंड ऑफ करेगा, 8 बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो गया 69, सॉरी 68, 70 नियरेस्ट 10 पे करेगा, सो सॉरी 70 हो गया। फिर अब क्या हो गया 87.9, तो यानी इस वाले को देख के करेगा 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका नियरेस्ट अप पोजीशन पे 10th डिजिट क्या हो जाएगा 90, 87 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट 82.1, तो ये 2 को देख के करेगा, लेकिन 2 तो हमारा छोटा है 5 से, तो ये राउंड ऑफ करेगा डाउन पोजीशन पे नियरेस्ट 10, यानी 82 के नियरेस्ट 10 डाउन पोजीशन पे क्या 80 है, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया 80। ओके, तो एक बार मैं एंटर करूं, अब यही 80 90 70 90 80, दिस इज द आउटपुट वी विल गेट। ओके, देखो 80 90 70 90 80। अब मैं क्या करता हूं, एक बार फिर से मैं एक बार सेलेक्ट करूं ये, अब मैं जरा ट्रंकेट यूज करूं, राउंड की जगह मैं क्या यूज कर दूं ट्रंकेट। देखो ट्रंकेट के केस में ये कैसे काम करेगा मैं जरा बता दूं। तो ट्रंकेट में ये तो हमेशा डाउन पोजीशन पे राउंड ऑफ करता है। ठीक है, ये बस आपको ख्याल, लेट मी राइट हियर 78.5, मैंने -1 दे रखा है, यानी इस 8 वाले को देख के, तो इसे तो 5 से बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं, ये चुपचाप इसे राउंड ऑफ करेगा 70 नियरेस्ट, मतलब डाउन पोजीशन पे नियरेस्ट 10, यानी 70 बना दिया। फिर इसने 89.2, ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं, इसे 80 बना देगा वो। फिर 68.6, ठीक है, इस 8 से इसे कोई मतलब नहीं है, ये इसको डाउन पोजीशन पे नियरेस्ट 10 यानी 60 हो गया। फिर हमारा क्या है 87.9 है, 87.9, इसके डाउन पोजीशन पे नियरेस्ट 10th क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या 82.1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये भी 80 हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा 70 80 60 80 9 80। ठीक है, लेट मी हिट एंटर एंड चेक द आउटपुट। ओके, सो आप देखो आउटपुट इज मैचिंग, सो आई होप you have understood the difference between round and truncate. So that's thank you so much everyone for watching this video.